हेलो स्टूडेंट्स সকলকে স্বাগতম আন এটা নতুন ভিডিওলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্টত থকা চেপ্টাৰ 5 সড়ক কি বাত। স্টুডেন্টস আজিৰ ক্লাছটো খুবেই স্পেশাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে, কাৰণ এইটো ক্লাছত তোমালোকে পাবা হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্টত লেটাৰ মাৰ্কস কেনেকৈ পায়, পঢ়াৰ টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স। স্টুডেন্টস টপাৰ ষ্টুডেন্টছবোৰে এইবোৰ টিপস আৰু ট্ৰিক্স ফলো কৰি ইহঁতে লেটাৰ মাৰ্কস লৈ বহুত ভাল পাৰ্চেণ্ট লৈ পাছ হৈ যায়। আৰু কিছুমান ষ্টুডেন্টছে সৰু সুৰা কিছুমান ভুলৰ কাৰণে ইহঁতে বহুত বেছি টাইম ষ্টাডি কৰাৰ পিছতো ৰৈ যায় আৰু ভাল মাৰ্কস আনিব নোৱাৰে। সো এই গোটেইখিনি বস্তুৰ সলিউশন তোমালোকে এইটো ক্লাছত পাবা। অকল তোমালোকে চেপ্টাৰ ওয়াইজ পঢ়িলে নহব, কিছুমান স্মাৰ্ট কাম কৰিব লাগিব, স্মাৰ্টলি কিছুমান বস্তু তোমালোকে ফলো কৰিব লাগিব, যাতে কম সময়ত তোমালোকে সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰি বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰিব পাৰা আৰু ভাল মাৰ্কস আনিব পাৰা। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কি প্ৰথমতে কৈছো পঢ়াৰ টিপস আৰু ট্ৰিক্স, হিন্দী ইলেক্টিভ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ইয়াৰ টিপস আৰু ট্ৰিক্স তোমালোকে ইয়াত পাবা। তাৰ পিছত কি পাবা, পাঠৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ অৰ্থাৎ অভ্যাসমালাত যি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে গোটেইখিনি পাবা। তাৰ পিছত কমন আলোচনা কৰা হ'ব, কি প্ৰশ্ন কমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, 100% কমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰশ্নবোৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট এডিশনাল কুৱেশ্যন আনসাৰ, এইটো হ'ল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এই ক্লাছটোৰ, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে শৰ্ট আনসাৰ পাবা, মানে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেবাৰে যিমানখিনি সম্ভৱ কিন্তু ভাল মাৰ্কস পাবা। অকল শৰ্টকৈ লিখিলে নহব, যাতে শৰ্টকৈ লিখি ভাল নম্বৰ অনা যায়, সেই হিচাপত উত্তৰবোৰ তোমালোকক একেবাৰে চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্ট পঢ়াৰ এটা নিয়ম আছে, যেনেকৈ প্ৰতিটো পাঠত, এইটো যেনেকৈ 5 নম্বৰ পাঠ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, এখেতে কি কৰিছিলে, এই সড়ক কি বাত নামৰ পাঠটো ৰচনা কৰিছিলে। কিন্তু হিন্দী ইলেক্টিভত দেখা যায় যে তোমালোকৰ কবি পৰিচয়ৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহে। ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিছা কবি পৰিচয়খিনি কিমান দীঘল হয়, এইখিনি গোটেই কি হয়, কবি পৰিচয় হয়। এই প্ৰতিটো কবি পৰিচয়ৰ পৰা এটাৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব, হাফ ইয়াৰলি হওক, প্ৰি ফাইনেল হওক বা ফাইনেল পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। মই কি কৰিছোঁ, তোমালোকৰ এই গোটেইখিনি কবি পৰিচয় পঢ়ি যিমান কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তাৰে পৰা কি কৰিছোঁ, প্ৰশ্ন বনাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে, একেবাৰে চুটিকৈ বনোৱা হৈছে, ঠিক আছে। এই প্ৰশ্নবোৰ পঢ়াৰ পিছত আমি কি আলোচনা কৰিম, এই প্ৰশ্নখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুন্দৰকৈ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম আৰু মই তোমালোকক কম কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰ পিছত তোমালোকে এইখিনি কাম কৰিলে অকল নহ'ব, তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব। মই যিমানখিনি চাইছোঁ, চাই কেনে তোমালোকৰ কাৰণে শৰ্ট কুৱেশ্যনছ বনাই আনিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে প্ৰতিটো পাঠত থকা শব্দাৰ্থ এণ্ড টিপ্পনী বুলি দিয়া থাকে, এই শব্দৰ অৰ্থবোৰ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। তোমালোকৰ পেপাৰত যিমানখিনি বস্তু আহে, শব্দ অৰ্থ, বিপৰীত শব্দ অৰ্থ, সমাৰ্থক শব্দ অৰ্থ, এই গোটেইবোৰ এই পাঠৰ পৰাই কমন পৰিব। প্ৰতিটো পাঠৰ পিছপিনে যে দিয়া থাকে শব্দাৰ্থ এবং টিপ্পনী বুলি দিয়া থাকে, এইবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। এতিয়া আমি পলম নকৰাকৈ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। 1 নম্বৰত দিয়া আছে, এইবোৰ কিন্তু এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দিয়া হয়, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই কবি পৰিচয়খিনি পঢ়ি বনাইছোঁ। 1 নম্বৰত দিয়া আছে সড়ক কি বাত কবিতা কে কবি কৌন হে, এনেকৈ এটা প্ৰশ্ন আহিবই, ফাইনেল পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন আহিব। সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰতিটো পাঠ কোনে ৰচনা কৰিছে এই কবিজনৰ নাম জানিব লাগে। সো সড়ক কি বাত কবিতা কে কবি কোন হে, একেবাৰে ইজি হয়, সড়ক কি বাত কবিতা কে কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ হে, ঠিক আছে। এটা প্ৰশ্ন কিন্তু আহিবই পৰীক্ষাত, যিকোনো এটা পাঠৰ কবিৰ নাম সুধিব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সড়ক কিসকি তৰহ সব কুছ महसूस कर सकती है, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে সড়ক अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सड़क किसे अच्छी तरह से पहचानती है थी, यार उत्तर होगा जे सड़क के ऊपर जो नियमित रूप से चलते हैं उन्हें वह अच्छी तरह से पहचानती थी। तार पिছত नेक्स्ट दिया है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, यार उत्तर होगा जे रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दिया है, सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है, उत्तर होगा सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना अंधे व्यक्ति से की है। तार पिছত नेक्स्ट दिया है 6 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम क्या है, यार शुद्ध उत्तर होगा जे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर है और था।
ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ কাৰণে মই খুবেই হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি এইবোৰ প্ৰশ্ন গোটেইখিনি পাৰ্টটো পঢ়ি বনাইছোঁ। তোমালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, ঠিক আছে। এতিয়া छोटे बच्चे अपना घर के आनंद किसके पास ले जाते हैं। उत्तर होगा छोटे बच्चे अपना घर के आनंद सड़क के पास ले जाते हैं। तार पिছত नेक्स्ट दिया है सड़क किसकी आखिरी घड़ी का इंतज़ार करती है। यार उत्तर होगा सड़क सांप की आखिरी घड़ी का इंतज़ार करती है। तार पिছত नेक्स्ट दिया है 9 नंबर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर किस आख्या से विभूषित है। उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि आख्या से विभूषित है। तार पिছত नेक्स्ट दिया है जे संताप का अर्थ क्या है। यार उत्तर होगा संताप का अर्थ मन का दुख है। स्टूडेंट्स एतिया आमी भाले केइटामान एक्सट्रा क्वेश्चन आन्सार आलोचना करिलो। एतिया आमी মাজতে কি কৰিম অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰি ল'ম আৰু মনত ৰাখিবা ক্লাছৰ শেষত আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট क्वेश्चन आन्सार आलोचना करा হ'ব। এইবোৰ গোটেইখিনি এক্সট্ৰা क्वेश्चन आन्सार হয়, অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত হয়, পাঠটো পঢ়ি উলিওৱা হৈছে আৰু এইবোৰ বহুত চান্স আছে পৰীক্ষাত কমন হোৱাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি তোমালোকৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পঢ়ি ল'ম, ঠিক আছে। যেনেকৈ 1 নম্বৰত দি আছে এক শব্দ মে উত্তৰ দিয়ক, অৰ্থাৎ এটা শব্দত উত্তৰ দিব লাগিব। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কিছ আখ্যা সে বিভূষিত হে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वकवि आख्या से विभूषित है। तार पिছত नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न दिया আছে যে रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम क्या था। এইবোৰ প্ৰশ্ন আমি অলৰেডি এবাৰ ওপৰত পঢ়িছোঁ। এই গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণে মই আগতে এক্সট্ৰা क्वेश्चन आंसर হিচাপত দি দিয়া হৈছে। उत्तर হ'ব रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। तार पिছত नेक्स्ट दिया আছে যে कौन सा काव्य ग्रंथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है। यार उत्तर होगा जे कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, ठीक है। এই गीतांजलि कविताখন কি হয় আমাৰ रविंद्रनाथ ठाकुৰৰ কি হয় कीर्ति स्तंभ হয়। तार पिছত नेक्स्ट दिया আছে सड़क किसकी आखिरी घड़िया का इंतजार कर रही है। यार उत्तर होगा जे सड़क सांप की आखिरी घड़िया का इंतजार कर रही है। तार पिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया है जे सड़क किसकी तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। आंसर होगा सड़क अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। नेक्स्ट दिया है जे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। এতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা বাক্যত উত্তৰ দিব লাগিব। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, ঠিক আছে। ওপৰৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে তোমালোকক কোনবোৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মই তোমালোকক কম। ওপৰৰ গোটেইকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ হয়, সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াত কমন বিচাৰিব নালাগে, তোমালোকে গোটেইকেইটা পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে। কিন্তু যোনবোৰ লং প্ৰশ্ন হয়, লং উত্তৰ হয়, দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সেইবোৰ আমি কি কৰিম কমন হিচাপত আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ এই প্ৰশ্নটো এইটোও শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ হয়, চ' তোমালোকে 2 নম্বৰৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন পঢ়ি ল'বা, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব যে কবি গুৰু रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता के जोरासोका में हुआ था। तार पिছত नेक्स्ट दिया है गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था। उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा निर्मित बंगाल के शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था। तार पिছত नेक्स्ट दिया है सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है। नेक्स्ट होगा सड़क के पास अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक मुलायम हरी घास या दूब डालना था, सो अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वनफूल खिलवाने के लिए फुर्सत नहीं थे। नेक्स्ट दिया है सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है। नेक्स्ट आंसर होगा सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना अंधे व्यक्ति से की है। तार पिছত नेक्स्ट दिया है सड़क कब और कैसे घर का आनंद कभी कभी महसूस करती है। यार उत्तर होगा जब छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते सड़क के पास जाते हैं और
शोरगुल मचाते हुए सड़क के पास आकर खेलते हैं, तब सड़क घर का आनंद कभी कभी महसूस करती है। এইটো প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন হ'ব, দাঁড়ি হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে, सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों की प्रतीक्षा क्यों करती है। उत्तर होगा जे सड़क अपने ऊपर से प्रतिनिधि नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वह नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती है। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে, অতি সংক্ষিপ্ত उत्तर द लगभग 25 शब्द में। 25টা শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগে। যেনেকৈ रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই তোমালোকক যেনেকৈ কৈছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নবোৰ মই তোমালোকক কৈ যাম, তোমালোকে দাগ দি ৰাখিবা। এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। उत्तर হ'ব, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा का परिचय हमें कविता, कहानी, उपन्यास, चित्रकला, संस्कृति, शिक्षा आदि के क्षेत्र में मिलता है। ठीक আছে। এতিয়া नेक्स्ट दिया আছে, शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालो। এইটো इम्पोर्टेंट है। यार उत्तर होगा जे शांति निकेतन कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा स्थापित एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र है। अभी यह केंद्र विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्य के अनेक विद्यार्थी उन्नत शिक्षा लेने के लिए शांति निकेतन में आते हैं। यहाँ पर्याक्रम, चित्रशिल्प, संगीत, नृत्य आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है जे सड़क साफ मुक्ति की कामना क्यों कर रही है। उत्तर होगा, सड़क साफ मुक्ति की कामना इसलिए कर रही है कि वो करवट ले सके, अपनी कड़ी और सूखी सेज पर मुलायम हरी घास बिछा सके और अपने सिरहाने के पास नीले रंग का वनफूल खिलाकर उसका सुख पा सके। नेक्स्ट दिया है, सुख की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क का क्या समझ जाती है। उत्तर होगा, सुख की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क उसके सुखों से एक अरमा हो जाता है। सड़क यह महसूस करती है कि वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है, अर्थात उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। नेक्स्ट दिया से, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़कों को क्या बोध होता है। यार उत्तर होगा, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क की यह बोध होता है कि उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदमों में न दया है न बया है, अर्थात उसके कदमों में निराशा और निरर्थकता भरा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया से, सड़क अपने ऊपर पैर एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती। आंसर होगा, सड़क अपने ऊपर पैर एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती क्योंकि नए नए पाव आकर पुराने चिन्ह को पीछे पहुँच जाते हैं। तारपिছত दिया से, बच्चों के कोमल पावों के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं। आंसर होगा, बच्चों के छोटे छोटे कोमल पाव जब मेरे ऊपर से चल जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ। मालूम होता है उनके पावों में लगती होगी। उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साथ होती है। नेक्स्ट दिया से, किस लिए सड़क को ना हंसी है ना रोना। आंसर होगा, सड़क को इसलिए ना हंसी ना रोना कि उस पर ही अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु सब कुछ प्रतिदिन नियमित रूप से चलता रहा है। यद्यपि सड़क अपने को सुख दुख से परे रखती है और खुद अकेली पड़ी रहती है। तार पिছত नेक्स्ट दिया से, राहगीरों के पाँवों के
शब्दों का याद रखने के संदर्भ में सरक ने क्या कहा है? आंसर होगा राहगीरों के पाँव के शब्द को याद रखने के संदर्भ में सरक ने कहा है कि कितने ही पाँव के शब्द उस पर आकर नीरव हो गए। 5 नंबर दिया से सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्द में। यार उत्तर अलग दीघल हम। क नंबर प्रश्न, सरक का कौन सा मनोभाव तुम्हें सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा और क्यों? यह उत्तर होगा जे सड़क के यह मनोभाव मुझे सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा क्योंकि सड़क किसी का भी लक्ष्य नहीं हो, सबका उपाय मात्र है। वह किसी का घर नहीं है पर सबको घर ले जाती है। सड़क को दिन रात यही संताप सताता रहता है कि उस पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, उस पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता। जिनका घर बहुत दूर है वे उसे ही कोसते हैं और साप देते रहते हैं। सड़क जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती है, इसके लिए कृतज्ञता नहीं पाती है। वे अपने घर में आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मिलित होता है। तारपिছত दिया से बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं और सड़क पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं, सड़क को केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया से सड़क ने अपने बारे में जो कुछ कहा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करो। वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न तो। यार उत्तर होगा सड़क ने अपने बारे में परिचय देते हुए कहा कि मैं सड़क हूँ। ये बेलेग बेलेग होगा जे सड़क ने अपने बारे में परिचय देते हुए कहा कि बेलेग होगा और मैं सड़क हूँ। शायद किसी के साप से चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पैरों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। जड़ निद्रा में परी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर साफ की आखिरी घड़ियों का इंतज़ार कर रही हूँ। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूं। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया से सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की जो बातें उजागर हुई है उन पर संक्षिप्त प्रकाश डाले। ये इम्पोर्टेंट ऐसा प्रश्न तो उत्तर होगा सड़क बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। दिन रात पैरों की ध्वनि सिर्फ पैरों की आहट सुना करती है। अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती है। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन काम से जा रहा है, कौन आराम करने जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। किसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वो हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। संसार की कोई भी कितनी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों में मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितनी गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ। तारपिছত এতিয়া তোমালোকৰ
প্ৰশ্নাৱলীত বা অভ্যাসমালাত দিয়া আছে ভাষা এবং ব্যাকরণ জ্ঞান। ঠিক আছে, प्रथमत কি দিছে যে निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखे। এই শব্দবোৰ কি কৰিব লাগিব, কি সমাসৰ হয় লিখিব লাগে আৰু অৰ্থ লিখিব লাগে। যেনেকৈ দিন ৰাত মানে দিন আৰু ৰাতি, দিন ৰাতটো আমি যদি ভাঙিলে কি হ'ব, দিন আৰু ৰাতি হ'ব। দিন ৰাত এই শব্দটো কি সমাসত দিয়া আছে, দ্বন্দ্ব সমাস। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে জাৰ নিদ্ৰা, জাৰ হে जो নিদ্ৰা, এইটো হ'ল কৰ্মধাৰয় সমাস। তাৰপিছত দিয়া আছে পগ ধ্বনি, পগ কি ধ্বনি, এইটো হ'ল সম্বন্ধ তত্ত্বপুৰুষ, এইটো হ'ব দেগু। প্ৰতিদিন এইটো হ'ব কি, অব্যয়ী ভাৱ। এইবোৰ তোমালোকে ভালকৈ দেখি ল'বা। আজীৱন, জীৱন পৰ্যন্ত, এইটো অব্যয়ী ভাৱ। তাৰপিছত কি আছে राह खर्च, राह के लिए खर्च, এইটো হ'ব সম্প্ৰদান তত্ত্বপুৰুষ সমাস। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अपादान तत्वपुरुष। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, बहुव्रीहि। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে মহাত্মা, মহান হে जो आत्मा, এইটো কৰ্মধাৰয় সমাস। ৰাতোৰাত, ৰাত হি ৰাত, অব্যয়ী ভাৱ। তাৰপিছত নেক্সট কি দিছে निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो शब्द बनाओ। परा, आप, अधि, उप, अभि, अति, सु, अब। এইটো কি কৈছে, নিম্নলিখিত উপসৰ্গৰ প্ৰয়োগ करके এই শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰি দুটা শব্দ বনাব লাগে। যেনেকৈ পৰা, পৰা দি দুটা শব্দ লিখিব লাগিব। অপ দি দুটা শব্দ লিখিব লাগিব। যেনেকৈ পৰা দুটা শব্দ লিখিলে হ'ব পৰাজয়, পৰাধীন। অপ দি দুটা লিখিলে অপমান, অপশব্দ। अधि, अधिकार, अधिकांश। उपमंत्री, उपनाम। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে অভিশাপ, অভিলাষ। অতি সুন্দৰ, অতি অদ্ভুত। সুহাগ, সূৰ্য। অৱগুণ, অৱগত। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কৈছে যে নিম্নলিখিত শব্দ से उपसर्ग का अलग करो। তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, ইয়াৰ উপসৰ্গবোৰ আলাগ কৰিব লাগিব বা বেলেগ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ অনুভৱ, অনুভৱত উপসৰ্গ কোনটো, অনুটো হ'ল উপসৰ্গ, এইটো আমি বেলেগকৈ লিখিছোঁ। পৰদেশ, পৰটো হ'ল কি উপসৰ্গ। দুৰ্দশা, দুটো হ'ল উপসৰ্গ। ঠিক আছে, এনেকৈ উপসৰ্গবোৰ বেলেগ কৰিব লাগে। যেনেকৈ নিদ্ৰয়, নিটো হ'ল উপসৰ্গ। ঠিক আছে, তাৰপিছত দিয়া আছে বেহোশ, বেটো হ'ল উপসৰ্গ। খুশবুত, খুশ হ'ল উপসৰ্গ। दुस्साहस, দুটো হল উপসর্গ। তাৰপিছত নেক্সট 4 নম্বৰ দিয়া আছে নিম্নলিখিত শব্দকে দো পর্যায়বাচী শব্দ লিখো। তলত দিয়া শব্দবোৰৰ দুটা পর্যায়বাচী শব্দ লিখিব লাগে। যেনেকৈ সড়ক, সড়ক হলে কি হ'ব পথ, ৰাহ। পর্যায়বাচী শব্দ মানে সমাৰ্থক শব্দ, মানে অৰ্থটো একেই হ'ব, অকল শব্দটো বেলেগ। জংগল, বিপিন, অৰণ্য। সংসাৰ, দুনিয়া, জগত। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে আনন্দ, হৰ্ষ, প্ৰসন্ন। घर, आलय, गृह। माता, माँ, मातृ। आँख, नयन, नेत्र। नदी, प्रवाहिनी, सरिता। তাৰপিছত দিয়া আছে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখো। এই শব্দবোৰৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখিব লাগে। তলত উত্তৰ লিখি দিয়া হৈছে। মৃত্যু হলে জন্ম হ'ব, মানে ওলোটাটো লিখিব লাগে। अमीर, गरीब। साप, वरदान। ছায়া, কায়া। জ্বৰ, চেতন। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে আশা, নিৰাশা। হাসি, क्रंदन। आरंभ, अंत। कृतज्ञ, कृत्यधन। তাৰপিছত দিয়া আছে पास, पास, नापास। निर्मल, मलिन। जवाब, प्रश्न। सूक्ष्म, स्थूल। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ধনী, নিন্ধনী। আকৰ্ষণ, বিকৰ্ষণ। এতিয়া দিয়া আছে সন্ধি বিচ্ছেদ করো। তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, এইবোৰৰ সন্ধি ভাঙিব লাগে। বিচ্ছেদ কৰা মানে ভাঙিব লাগে সন্ধি। যেনেকৈ দেহাবসান, অৰ্থাৎ দেহ যোগ অৱসান, দেহাবসান। উজ্জ্বল, উদ যোগ জল, উজ্জ্বল। রবীন্দ্র, রবি যোগ ইন্দ্র, রবীন্দ্র। তাৰপিছত দি আছে সূর্যোদয়, সূর্য যোগ উদয়, সূর্যোদয়। অত্যাধিক, অতি যোগ অধিক। উচ্চারণ, উচ্চ যোগ চারণ, উচ্চারণ। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে
মনোরথ মন যোগ রথ মনোরথ দুঃসাহস দুধ যোগ সাহস দুঃসাহস তাৰপিছত দিয়া আছে সদেৱ সদা যোগ এব সদেৱ জগন্নাথ জগত যোগ নাথ সংসার সম যোগ সার আশীর্বাদ আশী যোগ বাদ আশীর্বাদ এনেকৈ নিৰস নিত যোগ ৰস নিৰস এতিয়া মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এইটো ক্লাছৰ এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰ অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন এনচাৰ এই পাঠৰ পৰা আগতে আমি 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া 11 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম যে रविंद्रनाथ ठाकुर का काव्य ग्रंथ का नाम क्या है उत्तर হ'ব गीतांजलि ठीक আছে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে साध का अर्थ क्या है साध का अर्थ इच्छा ठीक है साध का अर्थ क्या है इच्छा है नेक्स्ट दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर का देहावसान कब हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुआ था नेक्स्ट दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर किस विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ तारपिছত नेक्स्ट दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ नेक्स्ट दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्र में मिलता है এইটো प्रश्न আমি আগতে এবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा परिचय हमें कविता कहानी उपन्यास चित्रकला संस्कृति शिक्षा आदि के क्षेत्र में मिलता है এইখিনিতে তোমালোকৰ হিন্দীৰ 5 নম্বৰ পাঠটো আমি গোটেইখিনি অতি ভালকৈ আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পাইছা ধন্যবাদ সকলোকে।